Okay, so how will we do it? So today is 25 01 2021. Now what we will do is that we will define the product metric, and okay, let us start. Suppose let MD1 and MD2 and MD2 are two metric spaces. Define a map D from M cross N cross M cross N. We want to define a metric on M cross N. M cross N is what? M cross N is a Cartesian product of M and N. So this two are, of course, greater than or equal to 0, as D of AX comma BY is equal to under root D1 AB square plus D2 XY square, like this, where AX and BY are elements of M cross N. So let me make a correction here. There will be N. So let me write N here. These are the two metric spaces, and we have defined a map like this. Now I leave it for verification exercise. Show that M with respect to this D is a metric space. So I leave it as exercise for you to verify that it is actually a metric space. तो क्या हुआ, हमारे पास अगर एक मैट्रिक MD1 पता है, एक मैट्रिक MD2 पता है, तो M और N के कार्टेशियन प्रोडक्ट पर हम एक मैट्रिक डिफाइन कर सकते हैं, और वो मैट्रिक हम इस तरह से डिफाइन कर लेंगे. ठीक, क्यों हमने ऐसा किया? जैसे हमारे पास क्या है, R है, R के ऊपर एक मैट्रिक हमको पता है D, और फिर से दूसरा स्पेस भी हमने R ले लिया, उसके ऊपर में मैट्रिक है D. तो इस D की मदद से हम लोग R2 पर एक मैट्रिक डिफाइन कर सकते हैं, और R2 के ऊपर जो मैट्रिक आ रही है उसको अगर हम D1 नाम देते हैं, तो D1 ऑफ XY AB अगर हम डिस्टेंस डिफाइन करेंगे तो ऊपर वाले रिलेशंस कैसे होगा? इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट X और A के बीच की डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू D, तो वो क्या होती है, मॉड ऑफ X माइनस A स्क्वायर प्लस Y और B के बीच की डिस्टेंस Y माइनस B मॉड स्क्वायर. यही आया ना जैसे इस रिलेशन में लिखा है, D1 ऑफ फर्स्ट coordinates of both the vectors and D2 of second coordinates of both the vectors. So D1 of first coordinate of both the vectors and D2 of second coordinate of both the vectors. यही आता है डिस्टेंस. तो ये आप लोग जानते हैं कि R2 में डिस्टेंस इसी तरह से निकलती है. यूजुअल डिस्टेंस R2 में क्या होती है, x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर. तो वही वाला फॉर्मूला आ गया. इसी तरह से आप R3 पे जा सकते हैं, R4 से जा सकते हैं. तो हम लोग दिखाएंगे कि अगर, तो ये एज एक्सरसाइज हम आपके लिए छोड़ रहे हैं कि अगर M, सॉरी एक करेक्शन कर लें, दिस इज M क्रॉस N, M cross N. So I am leaving it as exercise
to show that M cross N is a metric with respect to this map D, which is defined as above, with respect to map D. ठीक है, तो इसको हम लोग प्रोडक्ट मैट्रिक भी बोल सकते हैं. तो हम लोगों ने एक प्रोडक्ट मैट्रिक डिफाइन कर दी. नाउ देयर इज अ क्लेम. हमको दिखाना है कि अगर R कंप्लीट है तो हम R2 को भी कंप्लीट दिखा सकते हैं. कैसे हम लोग दिखाएंगे? इसके लिए दो ऑब्जर्वेशन छोटा छोटा है जिसको हम क्लेम के फॉर्म में लिख रहे हैं. पहला नंबर है ए सीक्वेंस xn yn in M cross n is Cauchy if and only if and only if xn yn are Cauchy respectively in M and N. ठीक है, यानी अगर xn और yn हम दो कोसी सीक्वेंस m और n में लें तो xn yn क्या होगा? M cross n में एक सीक्वेंस बनेगा and that sequence will be Cauchy, and this is if and only if condition. So let me prove this claim. So we will just apply the definition and we will get the result. So suppose xn yn is a Cauchy sequence in M cross n. And by the definition of Cauchy sequence, so given any epsilon greater than 0, you may also write for all epsilon greater than 0. There exists one n in n such that I'm using the definition of Cauchy sequences for all mn greater than equal to n implies distance between xn yn and xm ym will be less than epsilon. This implies under root. Now I will apply the definition of D. What is the definition of D? D1 of first coordinate of both the vectors. So xn xm square plus D2 of second coordinate of both the vectors. So yn ym whole square is less than epsilon. So this simply means what? This simply means we can remove under root by putting a square here, and then D1, this simply means that D1 xn xm square is less than epsilon, and D2 yn ym square is less than epsilon. Is there any problem in these steps? कहीं कोई दिक्कत आपको? No, sir. Okay, so this simply means that D1 xn xm is less than epsilon, and D2 yn ym is less than epsilon. So you may say this in a way that given epsilon greater than 0, there exists n in n such that for all mn greater than equal to n implies D1 of xn xm is less than epsilon, and for all mn greater than equal to n, it also implies that D2 of
yn ym is less than epsilon. So do you agree at this point? What does it means? It means that this is a Cauchy sequence in M, and this simply means that yn is a Cauchy sequence in N. So if xn yn is a Cauchy sequence, then xn is a Cauchy sequence and yn is a Cauchy sequence. Conversely, सर प्लीज suppose, रूट ओवर के बाद से एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना. okay, यहाँ तक क्लियर है ये स्टेप और ये स्टेप? यस सर. इसका क्या सर मतलब है? फर्स्ट वाले सर एक्शन इज ए कुशी सीक्वेंस इन एम, सर ये नहीं समझ में आया. वाई एन इज ए कुशी सीक्वेंस इन एन. सर अभी हाँ. लेट कर रहे हैं या सर इसको सर प्रूफ लास्ट स्टेप चल रहा है? नहीं, ये लास्ट स्टेप चल रहा है. हमने माना कि एक्स एन वाई एन इज ए कोसी सीक्वेंस इन एम क्रॉस एन. अगर हम एक्स एन वाई एन को एम क्रॉस एन में कोसी सीक्वेंस लेंगे तो हमने देखा कि ये जो एक्स एन आ रहा है वो एक सेपरेट सीक्वेंस हो गया एम में, क्योंकि यहाँ एम में भी तो चेंज हो रहा है उसी तरह से ना. एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री सब पहला कोऑर्डिनेट क्या है, एम में जा रहा है, और इसका दूसरा कोऑर्डिनेट एन में जा रहा है. तो एक सीक्वेंस हमको एम में भी मिल रहा है और एक सीक्वेंस हमको एन में भी मिल रहा है. जैसे ही हम एक सीक्वेंस m क्रॉस n में ले रहे हैं, वी आर गेटिंग टू सीक्वेंसेस xn एंड yn. xn इज इन m एंड yn इज इन n. इस बात से एग्री कर रहे हो? यस, यस और नो? यस सर. तो अब क्या होगा? यस सर. अब क्या हो रहा है कि अगर हम ऐसा हो रहा है तो हमने देखा कि अगर ये xn yn कोसी सीक्वेंस है तो एक कैपिटल एन से ऊपर जाने पर और एक एप्सिलॉन अगर दिया हो तो एक कैपिटल एन ऐसा मिल रहा है कि इससे ऊपर जाने पर एक्सन और एक्सएम के बीच की डिस्टेंस भी एप्सिलॉन से कम हो रही है और वाईएन और वाईएम के बीच की डिस्टेंस भी एप्सिलॉन से कम हो रही है. इसका मतलब एक्सएन भी कोसी हो गया और वाईएन भी कोसी हो गया. तो ये पहली कंडीशन क्या बता दी कि एक्सएन कोसी है, और ये दूसरी कंडीशन क्या बता दी कि वाईएन भी कोसी है. इसका मतलब दोनों सीक्वेंस अलग अलग कोसी हो गए. So if xn yn is a Cauchy sequence, then xn and yn are two sequences, both are Cauchy. सर वहां पे जब स्क्वायरिंग किए दोनों साइड तो इप्सिलॉन का भी स्क्वायर हो जाएगा ना सर, तो उसको इप्सिलॉन खाली भी लिख सकते हैं. नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड. यू आर राइट, दिस इज एप्सिलॉन स्क्वायर एंड नाउ इट इज एप्सिलॉन. यस सर. अब ठीक है, अब ठीक है. यस सर. थैंक यू सर. यस यस, दिस इज द मिस्टेक. ओके, थैंक यू फॉर. ठीक है, ये चलिए. कन्वर्सली सपोज दैट xn contained in m and yn, so we are taking two sequences xn and yn contained in n are Cauchy sequences. ठीक है. सो अगर ये Cauchy सीक्वेंसेस हैं तो हम इस पे Cauchy सीक्वेंस की डिफिनेशन लगाते हैं. सो गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, अगर हम पहले पे लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? नंबर ए. सो इसी एप्सिलॉन के लिए, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, देयर एक्सिस्ट n1 in n such that distance between xn and xm is less than epsilon for all n m greater than equal to n1. ठीक है? इज इट ओके? क्यों? क्योंकि xn एक Cauchy सीक्वेंस है. दूसरा चीज, गिवन सेम एप्सिलॉन देयर एक्सिस्ट n2 in n such that d2 of yn ym is less than epsilon for all n m greater than equal to n2. अब अगर हम n1 और n2 दोनों से बड़ा नंबर ले लें तो ये पहली आइडेंटिटी और दूसरी आइडेंटिटी दोनों सेटिस्फाई हो जाएगी. सो टेक n to be
मैक्सिमम ऑफ n1 n2, इन दोनों में जो बड़ा हो उसको ले लो. Then we can say that for all n greater than equal to, for all nm greater than equal to n, क्या होगा? Distance between xn yn and xm ym, इसके बीच की दूरी निकालते हैं. क्या होती है इसके बीच की दूरी? अंडर रूट d1 xn xm स्क्वायर प्लस d2 yn ym होल स्क्वायर, ये होती है. ठीक है. यस सर. अब इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं लेस देन अंडर रूट एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 एप्सिलॉन आ गया. अगर इसको एप्सिलॉन से छोटा आपको दिखाना है, यानी एडजस्ट करना पड़ेगा, तो आप क्या कर सकते हैं? एक काम कि गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एक n1 ऐसा भी मिलेगा कि वो एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा हो, और इसको एप्सिलॉन बाई 2 कर दीजिए. तो क्या होगा? यहां पे हम लोग ले सकते हैं एप्सिलॉन बाई 2 का स्क्वायर, और यहां पे भी ले सकते हैं एप्सिलॉन बाई 2 का स्क्वायर. ठीक है. आई एम जस्ट एडजस्टिंग इट सो दैट कि ये लेस देन एप्सिलॉन आ जाए. एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 4 लिख सकते हैं, 2 एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 4. ठीक है. ये सो क्या हो गया? एप्सिलॉन अपॉन अंडर रूट 2 विच इज लेस देन एप्सिलॉन. सो ये आ गया अपने आप एप्सिलॉन से छोटा. सो दिस implies xn yn is a Cauchy sequence in m cross n. Do you agree at this point? तो अगर xn सेपरेट एक Cauchy सीक्वेंस है और yn एक Cauchy सीक्वेंस है, तो ऑर्डर्ड पेयर xn yn एक Cauchy सीक्वेंस होगा. And conversely, if ordered pair xn yn is a Cauchy sequence, then xn is a Cauchy sequence and yn is a Cauchy sequence. ठीक है. जैसे हमने 2 के लिए किया, वैसे ही आप n कोऑर्डिनेट लेके भी कर सकते हैं. चलिए एक और क्लेम करते हैं. अब क्लेम नंबर 2. xn yn जो कि हमारा m क्रॉस n का सीक्वेंस है, अगर ये कन्वर्ज कर रहा है xy पॉइंट पर in m क्रॉस n, then it is if and only if this sequence xn is converging to x in m and this sequence yn is converging to y in n. If and only if है. चलिए बताइए, कोई कंफ्यूजन पहले वाले स्टेटमेंट में या दूसरे वाले स्टेटमेंट में? यहां तक ठीक है? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो सर. कोई दिक्कत नहीं है? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. आप पूछ सकते हैं, अगर कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो पूछ सकते हैं आप, क्योंकि आप जब तक पूछेंगे नहीं हमें समझ में नहीं आएगा. वी आर इन ऑनलाइन क्लास एंड सर अगर हमको जैसे अब बात जो बताया था पिछले दिन की आरएन भी होता है, वो भी एक कंप्लीट मैट्रिक स्पेस होता है. ये हमको दिखाना है, हम लोग इसी को दिखाने हाँ जा सर. रहे हैं कि आरएन कंप्लीट है. हाँ. तो यहाँ से जैसे R2 में आप लिए हुए कुशी सीक्वेंस लिए थे और ये दिखा दिए कि वो अगर कुशी है तो अलग अलग m और n में वो भी कुशी हो जाएगा. हाँ. तो सर xn जो होता है वो भी R में अगर कुशी है तो कन्वर्जेंट होगा.
हाँ वाई एन भी कुछ है तो कन्वर्जेंट होगा। बिल्कुल, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक्स एन वाई एन जो मेरा R2 में वो भी कन्वर्जेंट होगा तो R2 मेरा कंप्लीट बस मैट्रिक इसीलिए तो स्पेस हो कर रहे हैं जाएगा। इसको, इसीलिए कर रहे हैं। ओके सर। तो दिखाने ओके के सर। बाद हम यही कंक्लूजन करेंगे कि R कंप्लीट है, इसलिए R2 भी कंप्लीट होगा। ओके सर। ओके। ठीक है, चलिए इसको प्रूफ कर लेते हैं। Now suppose xn yn converges to xy in m cross n. So अब क्या करेंगे हम लोग, कन्वर्जेंस की डिफिनीशन अप्लाई करेंगे। So given epsilon greater than 0, there exists n in n such that distance between xn yn and xy is less than epsilon for all n greater than equal to n. ठीक है, ये क्या हो गई, कन्वर्जेंस की डिफिनीशन। अब हम क्या करेंगे, ये जो डी मैट्रिक डिफाइन किए इसकी डिफिनीशन लगाएंगे। दिस इंप्लाइज अंडर रूट d1 xn x square plus d2 yn y square, this is less than epsilon for all n greater than equal to n. This implies d1 xn x is less than, this square is less than epsilon square, and d2 yn y square is less than epsilon square. ठीक है, so this simply means that d1 xn x is less than epsilon and d2 yn y is less than epsilon for all n greater than equal to n. So it is true for any epsilon greater than 0, these two things will hold. Simply means that this implies xn is converging to x and yn is converging to, this is yn is converging to y. Is it okay? यस सर। चलिए Yes, इसका sir. कन्वर्स प्रूफ कर लेते हैं। कन्वर्सली suppose xn is converging to x in m and yn is a sequence converging to y in n. So given epsilon, now we are using the definition of convergence, given epsilon greater than 0, there exists, तो यहां से लिखते हैं, पहला क्या होगा, there exists n1 in n such that d1 of xn x is less than epsilon and d is there exists n2 in n such that d2 of yn y is less than epsilon. So one more thing, for all n greater than equal to n1 here and for all n greater than equal to n2 here. So take n to be the maximum of n1 n2. क्यों ऐसा लेते हैं, ताकि हमारी दोनों आइडेंटिटी होल्ड कर रहे। Now what is, now for all n greater than equal to n, if we determine the distance between xn yn and xy in m cross n, ठीक है, यहां बहुत सारा n हम यूज कर रहे हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये n मैट्रिक स्पेस वाला n नहीं है, ये n नेचुरल नंबर है और जो ऊपर m और n लिखा है वो मैट्रिक स्पेस वाला n है। सो डोंट गेट कंफ्यूज। ओके, so what is this distance? By definition it is under root d1 xn x square plus d2 yn y whole square. Now
Now what? This number is less than अंडर रूट, क्योंकि हमने इस n को इस कैपिटल N से बड़ा ले लिया और कैपिटल N जो है ये N1 और N2 से बड़ा है। अगर इस n से कंफ्यूजन हो रहा हो, ऊपर भी हमने ये काम किया था, अगर इस n से कंफ्यूजन हो रहा हो तो उसको हम N3 ले सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, N3 ले सकते हैं। सो n ग्रेटर देन इक्वल टू N3 हमने ले लिया, तो ये जो नंबर है D1 xnx ये एप्सिलॉन स्क्वायर से छोटा हो जाएगा और ये वाला नंबर भी एप्सिलॉन स्क्वायर छोटा हो जाएगा। तो फिर से फाइनली अगर हमको एप्सिलॉन लाना है तो हम यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2 कर सकते हैं। सो व्हाट वी विल गेट इज दैट we can write it is less than epsilon by 2 whole square plus epsilon by 2 whole square, which is equal to under root 2 into epsilon square by 4, so which is equal to epsilon upon under root 2, which is less than epsilon. So it simply means that plus xn yn is a sequence in m cross n and it is converging to xy. ठीक है, so my claim is that now, so ये claim proof हो गया. Now we can say that R2 is complete with respect to the metric D जो अभी हमने डिफाइन की D, उसी तरह से इसमें डिफाइन कर सकते हैं। तो D क्या आएगी हमारी, अगर हम D डिफाइन करेंगे तो D AB XY कैसे डिफाइन होगी, अंडर रूट D1 जो अभी हमने ऊपर डिफाइन की AX आएगी AX स्क्वायर प्लस D2 BY स्क्वायर आएगी। लेकिन D1 D2 क्या है, D1 D2 यूजुअल मैट्रिक है R की, तो दोनों ही क्या होगी, मॉड ऑफ A माइनस एक्स स्क्वायर, मॉड का स्क्वायर तो डायरेक्ट हम स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड मॉड ऑफ B माइनस वाई स्क्वायर तो हम इसको B माइनस वाई क्योंकि स्क्वायर लगा है इसलिए B माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वही यूजुअल डिस्टेंस नापने का तरीका है। सो R2 कंप्लीट है, इसको हम क्लेम कर रहे हैं। कैसे प्रूफ करेंगे इस क्लेम को, लेट xn yn be a Cauchy sequence, so C should be capital in R2. Then जैसा कि हम लोग ने ऊपर क्लेम में देखा, xn and yn are Cauchy sequences in R, but R is complete. Since R is complete, so suppose xn is converging to x and yn is converging to y. Again by above claim xn yn will converge to xy. Hence this sequence xn yn is convergent. xn yn क्या था, xn yn एक Cauchy sequence था, convergent हो गया. So it is true for any Cauchy sequence. So you can say that R2 is complete. R2 is complete. And similarly you can show the things for Rn. तो आप इसी तरह से Rn के लिए दिखा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने इन जनरल प्रोडक्ट मैट्रिक के लिए किया है तो R2 क्रॉस R करेंगे तो R3 मिलेगा, वो कंप्लीट होगा। R3 क्रॉस R4 R करेंगे तो R4 मिलेगा, वो कंप्लीट होगा। तो इंडक्शन से हम कह सकते हैं कि Rn भी कंप्लीट होगा, या डायरेक्ट Rn लिखकर आप एन टपल बनाकर प्रोडक्ट मैट्रिक डिफाइन करके वैसे भी लिख सकते हैं सेम प्रूफ को। सो इन दिस वे वी हैव the thing which we have done is that Rn is complete metric space.
metric space, ठीक है, और जहां पे n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है. सो वी हैव डन इट. सो हमने दिखाया R कंप्लीट है, और हमने ये भी दिखाया कि Rn एक कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है. सो कोई दिक्कत यहां तक आपको? डू हैव एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? नो सर. नो सर. किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सर यस विष्णु. सर अगर आर स्क्वायर हम लोग कंप्लीट दिखा दिए सर, अगर पूछे कि आर एन कंप्लीट दिखाना है तो सर हम लोग आर स्क्वायर इंटू आर ऐसे करके दिखाएंगे कि वो मैथमेटिकल इंडक्शन से कर देंगे? इंडक्शन से कर सकते हो आप, नंबर 1 तरीका. नंबर 2 तरीका है, आप r क्रॉस r लेकर n टपल पे मैट्रिक डिफाइन कर सकते हो और सेम रिजल्ट उसके लिए प्रूव कर सकते हो, जैसे हमने 2 कोऑर्डिनेट के लिए किया. में कर देंगे. हाँ, इन जनरल वे में आप n कोऑर्डिनेट के लिए कर सकते हो. दूसरा तरीका ये है कि आप इंडक्शन से भी दिखा सकते हैं, क्योंकि हमने दिखाया कि r, जैसे हमने दिखाया कि m और n कंप्लीट है तो m क्रॉस n कंप्लीट होगा, तो उस तरह से इंडक्शन लगाएंगे. यस सर. और r कंप्लीट है और हम मानेंगे कि r के कंप्लीट है, तो r k प्लस 1 को हम कंप्लीट दिखा सकते हैं. आर के प्लस 1 फिर कंप्लीट दिखाएंगे. बस हो जाएगा उसी से. यस सर, हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं. तो अब ये हो गया हमारा कंप्लीट, Rn कंप्लीट है. लेकिन अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी कोई मैट्रिक स्पेस है तो उसको हम उसका भी कंप्लीशन डिफाइन कर सकते हैं. यानी वो मैट्रिक स्पेस हो सकता हो कंप्लीट ना हो, लेकिन वो मैट्रिक स्पेस एक बड़े मैट्रिक स्पेस के अंदर कंटेंट हो और वो कंप्लीट हो. ठीक है, तो ऐसा जो बड़ा स्पेस है उसमें जो सबसे छोटा स्पेस है उसको हम लोग कंप्लीशन ऑफ मैट्रिक स्पेस जैसा कुछ टर्म दे सकते हैं. सो लेट मी फर्स्ट डिफाइन व्हाट टू मीन बाय कंप्लीशन ऑफ मैट्रिक स्पेस. सो बिफोर डिफाइनिंग दैट I need to define a dense subset and isometry of metric spaces. So let me define these two terms and then we will come to the meaning of completion of a metric space. So चलिए सबसे पहले dense subset define करते हैं. Dense set. So a subset A of a metric space Xt is called dense if A closure is equal to X. Means the smallest closed set containing A is X itself. Smallest closed set containing A is X itself. ठीक है, और फिर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि x के कोई भी पॉइंट लेंगे जो a में नहीं है, तो वो सारे पॉइंट क्या होंगे? a के लिमिट पॉइंट होंगे. ठीक है, तो इसको बोलते हैं डेंस सेट बोलते हैं या डेंस सबसेट बोलते हैं. अब डिफाइन करते हैं आइसोमेट्री. ए फंक्शन f from m to n where m and n are two metric spaces. So let me write it like this. A function f from a metric space md1 to a metric space nd2 is called isometry if the distance between the images of 2 points is same as the distance between the 2 points for all xy in M.
जैसे कि मतलब ये हो गया कि इमेज जो आ रही है उसके बीच की डिस्टेंस निकालें या पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालें, दोनों डिस्टेंस सेम आएगी, ठीक है ना, दोनों डिस्टेंस सेम आएगी। और आप यहां से देख सकते हैं कि ये कंडीशन होने का मतलब क्या हो गया है, ये फंक्शन जो है f, वो फंक्शन लिप्सिट्स कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑफ ऑर्डर 1 और कांस्टेंट भी 1 आ रहा है और लेस देन इक्वल टू की जगह इक्वल टू आ गया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन क्या होगा, आइसोमेट्री अगर होगी तो वो कॉन्टिन्यूअस होगी। सर So note that आइसोमेट्रिक कंडीशन एक बार फिर से बताइए ना प्लीज। लिप्सिट्स कंडीशन अगर आपको याद हो तो वो क्या होती है, एक फंक्शन अगर m से n में डिफाइन कर रहे हैं तो इस फंक्शन को हम लोग लिप्सिट्स फंक्शन कब बोलते हैं, लिप्सिट्स कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ऐसा कब बोलते हैं। अच्छा छोड़ो ना, लिप्सिस की भी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहां से देख सकते हैं क्या कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। Recall the definition of continuous function. So given epsilon greater than 0, there exists a delta जिसको हम epsilon ही ले रहे हैं, such that d1 of xy is less than delta implies d2 of fx fy जो कि बराबर है d1 of xy के, और d1 xy किससे बराबर है, डेल्टा के, और डेल्टा क्या है, एप्सिलॉन के बराबर है, ठीक है। तो अब अगर आप लेस लेना चाहते हैं तो इसको आधा कर दीजिए, एप्सिलॉन बाय 2 which is less than epsilon. So hence this function is hence f is continuous. और ये कॉन्टिन्यूटी कैसी हुई, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी हुई, क्योंकि ये पॉइंट पे डिपेंड नहीं करेगी। So this function is uniformly continuous. So isometry, when you will talk about isometry between two metric spaces, then that isometry will always be continuous. Yes sir, thank you sir. Not only this, isometry is also 1-1 mapping. So observe that number 1, isometry is continuous, जो हम लोग कर चुके हैं ऑब्जर्वेशन, isometry is continuous. Number 2, isometry is 1-1. क्यों ये आइसोमेट्री हमेशा 1-1 होगी, इसका प्रूफ आपके लिए छोड़ दें या कर दें, ट्राई करें। बोलिए, ट्राई करोगे आप, ठीक है। यस प्लीज। रिंटू आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। अच्छा चलिए देख लीजिए, एफ एक्स और सपोज करिए एफ वाई बराबर है, एफ एक आइसोमेट्री है एम से एन में, एफ अगर एम से एन में आइसोमेट्री है और एफ एक्स और एफ वाई अगर इक्वल है तो इसका क्या मतलब होगा, d2 ऑफ एफ एक्स एफ वाई कितना आएगा, 0 आएगा। बट आइसोमेट्री होने के कारण d1 ऑफ एक्स वाई के बराबर आना चाहिए, और d1 ऑफ एक्स वाई 0 होने का मतलब क्या हो गया, x is equal to y. So whenever we have isometry, then that isometry will be injective mapping, ठीक है ना, ऐसे ही तो दिखाते हो ना आप इंजेक्टिव मैपिंग। इमेज दो पॉइंट ले लिए, एक्स वाई हमने ले लिया एम में, और एफ एक्स और एफ वाई को इक्वल एज्यूम कर लिया। इफ बोथ आर इक्वल देन देयर डिस्टेंस इज 0, देयर डिस्टेंस इज 0, then the distance between the pre-images is also 0, and it means both the pre-images are equal. So x is equal to y.
So isometry is also a 1-1 mapping. Now the thing is that what do we mean by completion of a metric space? Completion of a metric space. Completion of metric space. So a metric space M cap D cap is called completion of MD. MD is another metric space. If first thing M cap D cap is complete metric space. Second thing is that MD is so let me write it like this. There exists phi from MD to M cap D cap. So this is MD to M cap D cap, such that phi is isometry and phi of M closer is equal to M cap. ठीक है, क्या मतलब हुआ? ये मैट्रिक स्पेस हमारे पास M था और यहाँ पे हमको एक M कैप, एक दूसरा मैट्रिक स्पेस मिला. M कैप जो है कंप्लीट है और M से M कैप में एक मैप मिल रही है फाई, जो कि आइसोमेट्री है. और साथ में जो इमेज आ रही है यहाँ पे फाई ऑफ M, ये कैसा सबसेट है? डेंस सबसेट है. तो हम क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे कि ये जो M कैप है वो M का कंप्लीशन है. M कैप को क्या बोलेंगे? M का कंप्लीशन है. Completion in some sense is the smallest metric space containing M which is also complete. Okay, so completion एक तरह से क्या होता है कि M को कंटेन करने वाला सबसे छोटा कंप्लीट मैट्रिक स्पेस होता है. M को कंटेन करने वाला क्यों कह रहे हैं? क्योंकि M से जो फाई M में मैपिंग हुई फाई वो 1-1 थी और साथ में क्या हुई? ऑनटू थी और डिस्टेंस को प्रिजर्व करने वाली मैप थी. यानी जो मैप हमने यहाँ पे, जो 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस यहाँ थी, वही 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस यहाँ पे. बस अंतर कहाँ हुआ? सिंबल का अंतर हो गया. यहाँ पे x से डिनोट कर रहे हैं उस चीज को, तो यहाँ पर हम किससे डिनोट कर रहे हैं? fy से, fx से डिनोट कर रहे हैं. ठीक है, तो जस्ट सिंबल का अंतर हो गया, यानी लिखने के तरीके में अंतर आ गया. तो जो पॉइंट्स हैं वो वही हैं, उनके बीच की डिस्टेंस भी यहाँ पे वही है. तो एक्चुअल में ये फाई एम है क्या? फाई एम एक्चुअल में कह सकते हैं कि एम ही है और कुछ नहीं है. और M को कंटेन करने वाला M कैप है. और M कैप कैसा है? M कैप के अंदर जो M है वो कम डेंस है. ठीक है, M कैप के अंदर M डेंस सबसेट है. सर इट मींस M सर कंटेंट है M कैप में और M कैप कंटेंट है M में, तब तो M कैप इक्वल टू M होगा. M जो है वो M कैप के अंदर कंटेन्ड है, ये कह सकते हैं, क्योंकि हमने आइसोमेट्री M से M कैप में डिफाइन की है. M कैप क्या है? डेंस है. देखो M में क्या अभी चीज आप की कमी बोले है? ना कि फाई एम भी M ही है. फाई M जो है M है, लेकिन फाई M कैप नहीं है ना. M कैप के अंदर एक सब स्पेस है फाई M. ओके, फाई M जरूर है क्योंकि 1-1 मैपिंग है, ऑन टू मैपिंग है, और क्या है? डिस्टेंस को प्रिजर्व कर रही है.
यानी यहाँ पे 2 पॉइंट की डिस्टेंस और वहां पे उसके इमेजेस के बीच के जो डिस्टेंस है वो सेम है। इसका मतलब सिंबल्स को लिखने के तरीके में अंतर है, यानी एक्स को हम एक्स ना लिख के वहां पे एफ से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। बट डिस्टेंस जैसे निकाल रहे हैं वो सारी चीजें सेम है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एम और फाई एम एक ही है, लेकिन फाई एम क्या है, एम कैप के अंदर एक डेंस सबसेट है। अच्छा एक चीज और देखो, एम के अंदर मिसिंग क्या था, एम के अंदर मिसिंग ये था कि वो कंप्लीट अगर नहीं है तो जो कोसी सीक्वेंसेस हैं वो जहां कन्वर्ज कर रहे हैं वो लिमिट पॉइंट्स, कन्वर्जन पॉइंट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अगर उन सारे कन्वर्जन पॉइंट को हम इकट्ठा कर लेंगे तो एम को कंप्लीट हो जाना चाहिए एक सेंस में। जो मिसिंग है उसको हम डाल दें तो उसको मोटा मोटी कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये कमी कौन पूरा कर रहा है, ये कमी एम कैप पूरा कर रहा है। वो जो सीक्वेंसेस एम के थे जो कंप्लीट नहीं हो रहे थे, नाउ दोज ऑल सीक्वेंसेस विल गेट कंप्लीटेड ओवर एम कैप। क्योंकि क्यों है, क्योंकि एम कैप कंप्लीट लिया है और एम डेंस है। इसका मतलब एम कैप के सारे पॉइंट्स क्या हैं जो एम में नहीं है वो एक्चुअल में एम के लिमिट पॉइंट्स ही हैं, ठीक है। तो इन सम सेंस ये स्मॉलेस्ट सब स्पेस है। हम लोग दिखाएंगे इसको कि एम कैप जो है यूनिक होता है अप टू आइसोमेट्री, यानी दो ऐसे कंप्लीट मैट्रिक स्पेस लेंगे तो कंप्लीशन लेंगे अगर दो तरह से कंप्लीशन बना के तो दोनों आपस में आइसोमेट्रिक होगा। और दूसरा हम लोग ये भी दिखाएंगे कि कंप्लीट कैसे करें किसी मैट्रिक स्पेस को, यानी कंप्लीशन को बनाएं कैसे, ठीक है। तो इसको हम लोग इन दोनों चीज को करते हैं नेक्स्ट टर्म पे। ओके टिल देन गुड बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. So if you have any query then you can ask.